Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In today's video, we are going to verify some important properties of sets using A, B and C sets. This question is from your class 9 review exercise 3 question number 6 chapter number 3. Verify the properties for the sets A, B and C given below. Properties are associative property of union, second associativity of intersection, third distributivity of union over intersection, fourth distributivity of intersection over union. Starting the explanation, let us discuss page number 45 at your book. At page number 45, they given you all the properties provided in the question statement. Associative property of union, associative property of intersection, distributive property of union over intersection, distributivity of intersection over union. These four properties are given at page number 45. Simply just learn these properties as the formula. फार्मूले की तरह इनको याद करेंगे आप, इनको याद करना मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी इजी टू लर्न. अगर यूनियन के बारे में कहा जाता है तो तीनों सेट के दरमियान यूनियन का साइन है. पहले बी और सी के दरमियान ब्रैकेट है, देन ऑन द राइट हैंड साइड द ब्रैकेट इज ऑन ए एंड बी. If they discuss about the associative property of intersection, means the intersection between these three sets. First, the bracket on the left hand side पे B and C set के साथ bracket है, on the right hand side the bracket on the A and B. Fifth part is distributive union over intersection. A, B और C के दरमियान पहले union का sign है, then the intersection sign. और according to the distributive law जब आप bracket open करते हो तो A union B first, then intersection का sign, then A union C. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी हमारे पास इसको प्रूव करना है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सिंपल हमने क्या करना है जो प्रोवाइडेड सेट्स इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन. एसोसिएटिव ऑफ यूनियन थ्री सेट्स के दरमियान है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी. On left hand side bracket on B union C and on the right hand side bracket on A union B. Simple, just learn the formula and then prove it. The left hand side is equal to the right hand side. When we do union in sets, the grouping of set does not affect the result. Whether we are combine B and C first and either we are combine A and B first, the final answer will remain same. Now we have to prove it by the explanation putting the values of A, B and C in left hand side and the right hand side. We take left hand side which is equal to A union B union C. For A set, first put the value of A set 1, 2, 3, 4 provided in the question statement. Then union sign, then the bracket, then put the value of B set 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then again union sign, then put the value of C provided in the question statement 5, 6, 7, 9, 10. Then close bracket. Now always first solve inside the bracket. A set value remains same. Union sign. Solve inside the bracket. Take the union between the B and C set. Union means combine or arrange all the elements in the set in arrangement order without repetition. Repetition के बगैर इन elements को arrangement order में लिख देंगे. This is the union. Starting from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब हम इन दोनों सेट्स के दौरान यूनियन कैलकुलेट कर लेंगे. यूनियन इज अगेन अरेंज राइट इन अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट द रेपिटेशन. तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 सेम है, सिंपल एक दफ़ा मेंशन करेंगे. 4 सेम है, मेंशन वन टाइम. देन 5, 6, 7, 8, 9 and 10. This we prove the left hand side. Now we take the right hand side. Right hand side is A union B inside the bracket, then union C. First we write the bracket, then write the A set. A set is 1, 2, 3, 4. Then union sign. Then write the B set provided in the question statement 3, 4, 5, 6, 7, 8. Close bracket, union. Now write the C set. C set they provided as 5, 6, 7, 9, 10.
First solve inside the bracket. Take the union between A and B set. A and B set के दरमियान यूनियन का मतलब है राइट इनटू द अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट द रेपिटेशन. अरेंजमेंट ऑर्डर 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 देन 5 6 7 and 8. Union sign. Write the C set 5 6 7 9 and 10. Again now we have to take the union between these two sets. Write into the arrangement order without repetition. 1 2 3 4 5 repeat or at single time. 6 repeat single time. 7 repeat single time. 8 9 and 10. By solving the left hand side we get 1 to 10, and by solving the right hand side we get 1 to 10. We prove that the associative property of union, that left hand side is equal to right hand side. Second part we are going to prove the associativity of intersection. Again 3 set हैं A B C, intersection sign because intersection की property को हम prove करने जा रहे हैं. A B and C, intersection sign. First put the bracket between B and C, then on the right hand side A and B. Intersection means the common elements. Here too the grouping doesn't matter. We check the intersection is associative by solving both sides separately. Take the left hand side. Prove it. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम. लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C. फर्स्ट राइट द A set value provided in the question statement 1 2 3 and 4. Then intersection sign, then bracket sign. Now put the values of B provided in question statement 3 4 5 6 7 and 8. Intersection sign, then put the value of C 5 6 7 9 and 10. Then bracket, close bracket sign. First we always solve inside the bracket. इस सेट को ऐसे ही मेंशन कर देंगे 1 2 3 and 4. Intersection sign. Now intersection means just only the common elements between these two sets. चेक करते हैं कि हमारे कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं. 3 कॉमन है, नो. 4 नो. 5 दोनों सेट में कॉमन है तो आर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 5. देन 6 इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ सेट. 6. 7 is also common. 7. 8 is not common, means our required result is 5 6 and 7. Only 3 elements are common between the B and C set. अब इन दोनों सेट के दरमियान इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे. हाउ? जस्ट टेक द कॉमन एलिमेंट्स. लेट्स सी आइदर देयर इज एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट. 1 नो, 2 नो, 3 4 no. There is no common element between two set. We are going to write it empty set. आप इसको इस सिंबल से मेंशन भी कर सकते हैं. this. Now we are going to prove the right hand side. Take the right hand side, which is A intersection B intersection C. Bracket. First put the values of A set provided in the question statement 1 2 3 4. Then intersection sign. Now B value 3 4 5 6 7 8. Bracket. Intersection. C value. C value is 5 6 7 9 10. पहले ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे. जस्ट टेक द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट. Let us check either there is any common element. 1 not common, 2 not common, 3 common in both set, 3 4 common in both set. Now write 4. The rest of elements are not common, so we are not going to write them. Intersection sign. Next set 5 6 7 9 and 10. Now we are going to take the intersection between these two sets. Just write the common elements. There is no common element between these two sets. 3 and 4 are not common in this set, means that our required result is empty set. Empty set symbol is also denoted by this. Let us check the left hand side we get the empty set, the right hand side we get the empty set, means that we verify the left hand side is equal to the right hand side. We verify to prove the third property, distributivity of union over intersection, means union over intersection and then A union B over intersection, intersection C. ब्रैकेट साइन. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A यूनियन B,
intersection, then A union C. Side first, which is equal to A union B intersection C. First put the values of A set. A set की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में 1, 2, 3 and 4. Union sign, bracket, then write the value of B set, which is 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Intersection sign, then C set value 5, 6, 7, 9 and 10. हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं. ये वाला सेट वैसे ही मेंशन कर देंगे 1, 2, 3 and 4. यूनियन ब्रैकेट के अंदर वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स. कैसे लेंगे? इंटरसेक्शन इज जस्ट द कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट्स चाहिए हमें. ओनली द कॉमन एलिमेंट्स. 3 कॉमन है दोनों सेट्स में? नो. 4 इज ऑल्सो नॉट कॉमन. 5 कॉमन बिटवीन दीज टू सेट, वी गेट द 5. 6 कॉमन है? यस. 7 कॉमन है? यस. 8 इज नॉट कॉमन, मीन्स आर रिजल्ट इज 5, 6 and 7. नाउ हमें यूनियन लेना है इन दोनों सेट्स के दरमियान. यूनियन मीन्स कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स इन अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट द रेपिटेशन. कंबाइन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इनको अरेंजमेंट ऑर्डर में हमने मेंशन करके लिख दिया. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. A union B, intersection sign A union C. पहले ब्रैकेट A सेट की वैल्यू मेंशन कर देंगे 1, 2, 3 and 4. यूनियन साइन. नाउ मेंशन द B सेट वैल्यू which are 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ब्रैकेट साइन. इंटरसेक्शन, देन अगेन ब्रैकेट साइन. A यूनियन A की वैल्यू मेंशन कर देंगे 1, 2, 3 and 4. यूनियन साइन. नाउ मेंशन द C सेट वैल्यू. C सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5, 6, 7, 9 and 10. ब्रैकेट. दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं. पहले ब्रैकेट के अंदर हमने यूनियन लेना है दोनों सेट के दरमियान. मीन अरेंजमेंट ऑर्डर में कंबाइन कर देना. 1, 2, 3, रेपिटेशन नहीं करते, रिपीट हो रही वैल्यूज एक बार ही मेंशन करते हैं. 4, 5, 6, 7 and 8. इंटरसेक्शन साइन. सेकेंड वैल्यू के दरमियान यूनियन कैलकुलेट करना है दोनों सेट के दरमियान. यूनियन मीन्स राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट रेपिटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 10. Now we have to take the intersection between these two set. Intersection का मतलब होता है just only the common elements. Common elements क्या हैं? 1 common है दोनों में, we get the 1. 2 is common between these two set, 2. 3 is common between these two set, so 3. 4 is common between these two set, 4. 5 is common, 5. 6 is also common, 6. 7 is also common, 7. 8, 9, 10 common नहीं. Our required result is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा यही था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वी प्रूव. नाउ इन फोर्थ पार्ट वी आर गोइंग टू प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. मीन्स पहले इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C. ब्रैकेट B यूनियन C में व्हेन वी ओपन इट A इंटरसेक्शन B, यूनियन साइन, देन A इंटरसेक्शन C. Left hand side लेंगे. फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड. These are very easy question if you follow this step by step. A intersection B union C. Substitute the value of A. A values are provided in the question statement 1, 2, 3 and 4. Intersection sign, bracket, then substitute the value of B. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Union sign. C values 5, 6, 7, 9, 10. Then close the bracket. Now
पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो इस सेट के एलिमेंट्स को ऐसे ही मेंशन कर देंगे 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन साइन यूनियन मीन्स कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स इन अरेंजमेंट ऑर्डर तो 3 4 रेपिटेशन नहीं होगी सिंगल टाइम लिखेंगे 5 6 7 8 9 एंड 10 नाउ अब हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है इन दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन मीन्स जस्ट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास इसमें 1 इज नॉट कॉमन 2 इज नॉट कॉमन 3 and 4 only the common elements between these two sets so our required result of left hand side is 3 and 4 now we are going to take the right hand side which is equal to A intersection B union A intersection C पहले ब्रैकेट में A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 and 4 intersection sign then substitute the B value is 3 4 5 6 7 and 8 close the bracket then union sign again bracket sign A substitute the value of A set 1 2 3 and 4 intersection sign C value is 5 6 7 9 and 10 close the bracket now first we are going to take the intersection between these two sets पहली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों सेट्स के दरमियान जस्ट राइट द कॉमन एलिमेंट्स 1 इज नॉट कॉमन 2 is not common just only 3 and 4 common between these two sets so we are going to write 3 and 4 then union sign now अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगेन इंटरसेक्शन जस्ट राइट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज सेट 1 is not common 2 is not common 3 is not common 4 is not common 5 means nothing is common in between these two set कोई भी एलिमेंट में कॉमन नहीं है तो वी गेट द रिजल्ट एम्प्टी सेट खाली सेट आएगा वी हैव टू टेक नाउ द यूनियन बिटवीन दीज टू सेट इन दोनों सेट के दरमियान हमने यूनियन कैलकुलेट करना है यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो 3 and 4 दीज आर ओनली एलिमेंट्स तो इनको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे वी गेट 3 and 4 यूनियन का मतलब होता है अरेंज इन अ राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट द रेपिटेशन तो राइट हैंड साइड सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड के बाद भी हमारे पास रिजल्ट था 3 and 4 By solving this, we prove the property of distributivity of intersection over union that left hand side is equal to right hand side. Now we are going to discuss the question number 6b part. In this they given us A set is equal to empty set. B set only the one single element is 0. In C set they given us 0, 1 and 2. And says that find the associativity of union. Prove that the left hand side is equal to the right hand side. First we take the left hand side. Left hand side is A union B union C. A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे A इज एम्प्टी सेट एम्प्टी यूनियन ब्रैकेट B सेट क्या है हमारे पास 0 यूनियन C क्या है हमारे पास 0 1 and 2 ब्रैकेट नाउ फर्स्ट वी हैव टू टेक द यूनियन बिटवीन दीज टू सेट पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं यूनियन मीन्स राइट इन द कंबाइंड एंड अरेंजमेंट ऑर्डर 0 1 and 2 0 1 and 2 हमने कंबाइन करके विदाउट रेपिटेशन अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख दिया नाउ अगेन यूनियन लेना हमने एम्प्टी सेट है कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारे पास यहाँ पे तो एम्प्टी सेट को जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 1 and 2 कंबाइन करके लिखते हैं अरेंजमेंट ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंजमेंट ऑर्डर में 0 1 2 लेफ्ट हैंड साइड नाउ वी आर गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C ब्रैकेट पहले एम्प्टी सेट को मेंशन करेंगे A इज एम्प्टी सेट यूनियन B सेट क्या है B सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट है हमारे पास 0 यूनियन C सेट में हमारे पास 0 1 and 2 नाउ यूनियन का मतलब है कंबाइंड अरेंजमेंट ऑर्डर तो हमारे पास आंसर इन दोनों का यूनियन क्या आएगा आंसर वी गेट 0 ओनली देन यूनियन बिटवीन द नेक्स्ट C सेट 0 1 and 2 अगेन क्या हमने अरेंजमेंट ऑर्डर में करके लिखना without repetition we get 0 1 and 2
वी प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 1 2 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 and 1 2 था. बाय यूजिंग दिस वी प्रूव दैट द एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू द राइट. नाउ प्रूव द एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C. A की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट साइन. B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 intersection. C value we have in the question statement 0 1 and 2. Always first solve inside the bracket, empty set intersection bracket के अंदर solve करेंगे. 0 1 and 2 इन दोनों intersection का मतलब है इन दोनों के दरमियान common set. Only 0 is the common element between these two set. 0 दोनों element के साथ common है तो 0. अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे. दिस इज द एम्प्टी सेट, इसका मतलब है खाली सेट, और इसमें एक एलिमेंट है 0. इन दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है तो वी गेट द रिजल्ट एम्प्टी सेट. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट. A की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन B की वैल्यू है हमारे पास 0 ब्रैकेट इंटरसेक्शन C value we have 1 0 1 2. Now first we take the intersection between these two. पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे. एम्प्टी सेट और 0, इसका मतलब है 0 यूनिट है हमारे पास, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होगा. वी गेट द एम्प्टी सेट, खाली सेट हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर में आएगा. इंटरसेक्शन साइन 0 1 and 2. अगेन वी हैव टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू. दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो आर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज एम्प्टी सेट. लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की वी गेट द एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड सोल्व की वी गेट द एम्प्टी सेट. बाय सोल्विंग दिस वी प्रूव द एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड बाय प्रोवाइडेड यूनिट और सेट इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. इसकी प्रॉपर्टी लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. A इज एम्प्टी सेट, A की जगह एम्प्टी सेट मेंशन कर देंगे. यूनियन साइन देन ब्रैकेट B का सेट मेंशन करेंगे विच इज़ 0. इंटरसेक्शन मेंशन द C सेट 0 1 and 2 देन ब्रैकेट यूनियन. नाउ फर्स्ट ऑलवेज सोल्व इनसाइड द ब्रैकेट. पहले इसको ऐसे ही मेंशन कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करते हैं. इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू. इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट क्या है, 0. ओनली 0 द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट. अब इसको हमने यूनियन का मतलब होता है राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर. कंबाइंड फॉर्म में अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख दें. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें 0 एलिमेंट है तो हाँ रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 0. कंबाइन करना है ना, अरेंजमेंट ऑर्डर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हम उसको मेंशन कर देंगे. नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. ब्रैकेट A की वैल्यू मेंशन करते हैं एम्प्टी सेट. यूनियन B के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 0 ब्रैकेट इंटरसेक्शन अगेन ब्रैकेट A के एलिमेंट क्या है, एम्प्टी सेट. यूनियन C के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 0 1 and 2 देन अगेन ब्रैकेट. सोल्व करते हैं. यूनियन का मतलब होता है कंबाइन इन अरेंजमेंट ऑर्डर. दोनों के दरमियान यूनाइट करके लिख देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. इंटरसेक्शन साइन. अब इस ब्रैकेट का सोल्व करेंगे. यूनियन का मतलब होता है राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर. एम्प्टी सेट का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा आंसर आएगा 0 1 and 2. नाउ वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट. इंटरसेक्शन का मतलब होता है जस्ट राइट द कॉमन एलिमेंट्स. दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट सिर्फ 0 है, सो आर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 0 ऑफ राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 0 आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी वी गेट द 0. बाय सॉल्विंग दिस वी प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. In fourth part, we have to prove the distributivity of intersection over union. First, we take the left hand side. A हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन ब्रैकेट B का सेट हमारे पास है 0. यूनियन C सेट वी हैव 0 1 and 2 ब्रैकेट. एम्प्टी सेट वैसे आ जाएगा. इंटरसेक्शन साइन पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे. यूनियन अगेन राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर. अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखेंगे 0 1 2 0 1 and 2. इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट मीन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स. दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, इट्स द एम्प्टी सेट. सो आर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज एम्प्टी सेट. कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारा रिजल्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा. नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड. ब्रैकेट A इज एम्प्टी सेट.
इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, जीरो है ओनली, सिंगल एलिमेंट, ब्रैकेट यूनियन, देन अगेन ब्रैकेट, ए की जगह एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी सेट वी हैव 0 1 एंड 2, देन अगेन ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन मीन ओनली द कॉमन एलिमेंट, दोनों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट खाली सेट होता है, दिस इज 0, नो कॉमन एलिमेंट, यूनियन साइन, नाउ टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट, दोनों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है ये खाली सेट है, 0 1 एंड 2, नो कॉमन एलिमेंट, आर रिजल्ट इज एम्प्टी सेट। तो इसको यूनियन लेके लिखेंगे, एम्प्टी सेट का यूनियन सेट, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वी गेट द एम्प्टी सेट, खाली सेट ही हमें मिलेगा। By solving this, we prove the property of distributivity of intersection over union. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट। Now we are going to solve question number 6C part where a is equal to n which is all the natural numbers. तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 so on. b is equal to z which is equal to set of integers, वो क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्यू क्या, क्यू हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेना होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं एन जो है ना वो सबसेट है जी का, क्योंकि z के अंदर मौजूद है, 1 2 3 इसमें मौजूद है और z में इससे ज़्यादा वैल्यूज़ है, तो n इज़ द सबसेट ऑफ z। z सेट ऑफ इंटीजर्स के तमाम ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर z सबसेट से z से बड़ा है, तो मीन्स z इज़ द सबसेट ऑफ q, q सेट का सबसेट है। सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि z जो है वो पूरा q के अंदर मौजूद है और n पूरा z के अंदर मौजूद है। तो अब जब सबसे बड़ा सेट है हमारा द बिगर सेट इज़ q, ऑल रैशनल नंबर्स, z n से बड़ा है। इन चीज़ों को समझने के लिए अगर आप बिगर सेट के बारे में आइडिया ले लेंगे कि बिगर सेट कौन सा है और स्मॉलर सेट कौन सा है, तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम n यूनियन z लेते हैं, z यूनियन का मतलब है कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स। जब हम यूनियन लेते हैं तो हमेशा हमारा रिजल्ट बिगर सेट आता है, तो n यूनियन z का रिजल्ट हमारे पास z के इक्वल आएगा। और अगर हम n इंटरसेक्शन z लेते हैं तो हमारे पास जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा रिजल्ट स्मॉलर सेट आता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स तो सबसेट में होते हैं ओनली, तो n इंटरसेक्शन z का रिजल्ट हमारे पास n आएगा। इसी तरह अगर हमने z का यूनियन लेना है, z यूनियन q लेना है, तो q z से बड़ा सेट है, q इज़ द बिगर सेट, तो यूनियन में हमारे पास q रिजल्ट आएगा। और अगर हम z इंटरसेक्शन q लेते हैं, बिगर सेट है, इंटरसेक्शन में हमारे पास रिजल्ट स्मॉलर सेट आता है। स्मॉलर क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो वी गेट द आंसर z। अब इस प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि n नेचुरल नंबर सबसेट है z का, z सबसेट है q का, तो q सबसे बड़ा सेट है, उसके बाद z नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है। तो जब यूनियन लेना होगा तो आंसर हमारा बड़ा सेट आएगा, और जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर स्मॉलर सेट आएगा। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। इन प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ए सेट क्या है हमारे पास, ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, यूनियन बी हमारे पास क्या है जेड, यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू। अभी हमने डिस्कस किया, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। रिसेंटली वी डिस्कस जब हम यूनियन लेते हैं तो ऑलवेज वी गेट द बिगर सेट रिजल्ट। हमने जेड यूनियन क्यू लेना है, क्यू बड़ा सेट है तो हमारा आंसर आएगा क्यू। नो अगेन हमने यूनियन लेना है, नेचुरल नंबर सबसेट है क्यू का, तो हमारा यूनियन रिजल्ट क्या आएगा क्यू। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा क्यू। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट ए हमारे पास क्या है एन, यूनियन बी हमारे पास क्या है जेड, देन ब्रैकेट यूनियन सी वी हैव क्यू। वैल्यूज पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। एन यूनियन जेड, जेड बिगर सेट है, हमने यूनियन लेना है, जब यूनियन लेना होता है तो हमारा रिजल्ट हमेशा बिगर सेट आता है, तो जेड यूनियन क्यू। नाउ टू टेक द यूनियन बिटवीन जेड एंड क्यू सेट। यूनियन लेते हैं तो ऑलवेज वी गेट द रिजल्ट बिगर सेट इज क्यू सेट, सो आर रिजल्ट इज क्यू। वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आए। वी प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। Now we discuss the second part, associativity of intersection. First we take the left hand side. A intersection B intersection C. A क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, B क्या है z सेट ऑफ इंटीजर्स, C Q
ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। एन इंटरसेक्शन हमने अभी डिस्कस किया था, जेड सबसेट होता है क्यू का, मीन्स क्यू के अंदर मौजूद होता है। जो हमारे पास स्मॉलर सेट का रिजल्ट आता है, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम वी गेट ऑलवेज द स्मॉलर रिजल्ट, क्योंकि स्मॉलर सेट के एलिमेंट से सिर्फ कॉमन हो सकते हैं ना। हमने जब कॉमन वैल्यूज देखनी होती हैं तो हमारे पास रिजल्ट स्मॉलर सेट आता है। जेड इज द स्मॉलर सेट, सो आर इंटरसेक्शन बिटवीन जेड एंड क्यू इज जेड। नाउ वी टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन एन एंड जेड। नेचुरल नंबर सबसेट है जेड का, मीन्स जेड के अंदर मौजूद होते हैं और हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। स्मॉलर सेट है तो इंटरसेक्शन में वी गेट ऑलवेज द रिजल्ट स्मॉलर सेट विच इज इक्वल टू एन। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए एन इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जेड, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है क्यू। इंटरसेक्शन में हमेशा रिजल्ट हमारा स्मॉलर सेट आता है अगर वो उसका सबसेट हो तो, बिकॉज एन इज द सबसेट ऑफ जेड, इट मीन्स दैट इंटरसेक्शन में हमारा रिजल्ट आएगा एन स्मॉलर सेट। इंटरसेक्शन क्यू, अगेन एन क्यू का सबसेट है और क्यू से छोटा सेट है तो इंटरसेक्शन में हमेशा रिजल्ट स्मॉलर सेट आता है विच इज इक्वल टू एन। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट हमारे पास एन आ गया। वी प्रूव दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। Now we get the left hand side result is equal to n and the right hand side is equal to n. By using in third part we have to prove the property of distributivity of union over intersection. First we take the left hand side. Left hand side लेंगे. Left hand side is equal to A union B intersection C. A हमारे पास है set of natural numbers. B we have set of integers. N Q set of all rational numbers. पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे यूनियन। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में हमेशा हमारे पास स्मॉलर सेट रिजल्ट में आता है। जेड स्मॉलर सेट है तो जेड इंटरसेक्शन क्यू वी गेट जेड। अब यूनियन लेना है, यूनियन में हमारे पास ऑलवेज वी गेट द रिजल्ट बिगर सेट। बिगर सेट जेड बिगर सेट है तो एन यूनियन जेड वी गेट द रिजल्ट जेड। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। ए की वैल्यू क्या है एन, बी जेड इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। यूनियन में हमेशा रिजल्ट बड़ा सेट आता है, एन यूनियन जेड, जेड बड़ा सेट है वी गेट जेड। इंटरसेक्शन साइन अगेन एन यूनियन क्यू, ऑलवेज वी गेट द बिगर सेट रिजल्ट, एन यूनियन क्यू बिगर सेट इज क्यू, सो वी गेट द रिजल्ट क्यू। इंटरसेक्शन में हमेशा हमारा रिजल्ट स्मॉलर सेट आता है, जेड इंटरसेक्शन क्यू, स्मॉलर सेट क्या है जेड, वी गेट द रिजल्ट जेड। We prove the property of distributivity of union over intersection. We get the result left hand side is equal to the z and the right hand side is equal to the z. Fourth part we prove the property of distributivity of intersection over union. First we take the left hand side. A intersection B union C. A n intersection bracket B हमारे पास क्या है z union Q. ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करेंगे। यूनियन में हमेशा वी गेट द बिगर सेट रिजल्ट क्यू, तो यूनियन जेड यूनियन क्यू हमारे पास क्यू आंसर आएगा। इंटरसेक्शन ऑलवेज वी गेट द स्मॉलर सेट, एन इज द स्मॉलर सेट इज द सबसेट ऑफ क्यू सेट, इट मीन्स दैट द स्मॉलर सेट वी गेट द रिजल्ट एन इंटरसेक्शन क्यू। हमेशा इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट रिजल्ट में आता है और यूनियन में बिगर सेट। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ए की जगह एन इंटरसेक्शन जेड यूनियन ब्रैकेट एन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्यू, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। नो इंटरसेक्शन में हमेशा हमारे पास स्मॉलर सेट है का रिजल्ट आता है तो एन इंटरसेक्शन जेड वी गेट द रिजल्ट एन बिकॉज एन इज द स्मॉलर सेट। यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू, बोथ में हमारे पास स्मॉलर सेट रिजल्ट में आना चाहिए। एन इंटरसेक्शन क्यू, एन इज द स्मॉलर सेट, एन इज द रिजल्ट, और एन यूनियन एन दोनों सेम है तो वी गेट द रिजल्ट एन। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया वी गेट द रिजल्ट एन, राइट हैंड साइड को सोल्व किया वी गेट द रिजल्ट एन। मीन्स बाय सोल्विंग दिस वी प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.